Hello and welcome everyone. We are starting with part 2 of our chapter motion. We have discussed about physics, we have discussed about physical quantities, we have discussed about types of physical quantities, some basic fundamental quantities, and in this video we will discuss about system of units. The next topic that we will discuss is we will discuss about distance and displacement. Then we will discuss about concept of speed and velocity. Along with difference in average speed and average velocity. So these are the topics that we will be doing in this part 2 of our chapter motion. All right, so system of units. Yesterday I told you about some basic fundamental quantities. There are seven fundamental physical quantities. I'm again writing them: mass, length, time, of course there is temperature, current, amount of substance, and luminous intensity. So for our discussion we will consider these two or maybe these three. All right, so there are different system of units. See, if I say mass, I'm not giving it a unit, I'm saying mass 13, I'm saying length 13. Does it make any difference? Are we able to identify which of these is a mass, which of these is a length? So unit provides identity to any quantity. Unit provides identity to any quantity. If I write 13 kg, then of course you will say that this is a unit of measuring mass. If I write 13 meter, then you will say this is a unit of for measuring length. So unit, they provide a sense of identity to the physical quantities. So in our system of units, the first topic that we are going to discuss in this video, we have different system of units. For example, we have one CGS system of units. CGS system of unit, that is length in centimeter, mass in grams, time in second. This is one system. There is a standard international system for measuring. What is the standard international measurement system means? See, in this whole world there are about 200 countries. If they start having their own system of measurements, then it would be impossible for international trade to flourish. ठीक है, globalization खत्म हो जाएगा. तो to promote such globalization, to integrate the whole world trade into one segment, it is necessary that the world follows some standard international system of units which is common and applicable to all the countries. So for that standard measurement system, mass, it is measured in kg, length it is measured in meter, and time, this is measured in seconds. So this is a standard international system. All right, so this was about system of units. Why is a unit necessary? Because it provides an identity to a physical quantity. We can identify the physical quantity कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं. Next we will talk about distance and displacement. Next topic is distance and displacement. I will also discuss the differences between distance and displacement. All right, so in this portion I'm going to write all about distance. So distance की definition क्या है? This is length of actual path covered by a body. This is the shortest path
between initial and final position. This is displacement. All right, so we say that distance, this is a scalar quantity. Yesterday I told you the quantities which can be completely determined with their magnitude only, they are called scalar quantity. However, which needs both magnitude and direction, they are vector quantity. So displacement, this is a vector quantity. I'll tell you how this is a vector quantity. See, I'm drawing a diagram. All right, so this is the path of an object to go from position A to position B. I say this is 7 kilometer. What is this? This is 7 kilometer. See, this is 7 kilometers. So the length of actual path traveled by body is 7 kilometer. This path can also be written like this. A object goes from A to B, then it comes to C. एक ऑब्जेक्ट A से B तक जाता है, फिर C तक आता है. See, suppose this is 5 kilometer, this is 2 kilometer. Consider it anything. Consider this 17 kilometer, right? This is 15 kilometer, this is 2 kilometer. You can consider it anything, ठीक है. So यहाँ पर भी distance, what is distance? This is length of actual path. तो इसने कवर कितना करा? 15 किलोमीटर और फिर 2 किलोमीटर. तो डिस्टेंस यहाँ पर हो गया कितना? 17 किलोमीटर. अब इसी केस में इफ़ आई राइट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, ये था ना डिस्टेंस. दिस इज़ इनिशियल पोजीशन A, दिस इज़ B. हमें जाना कहाँ पर है? C पर. सो उस बंदे ने क्या किया, उसने यहाँ से लेकर और यहाँ तक चला गया वो, और उसने कवर करा सिर्फ 6 किलोमीटर. उसने कवर करा 6 किलोमीटर. सो दिस वाज 15 किलोमीटर, दिस वाज 2 किलोमीटर. सो नाउ इफ़ आई से दैट डिस्टेंस यहाँ पर भी कितना है? 17 किलोमीटर. बट डिस्प्लेसमेंट, लेंथ ऑफ पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन C, तो दिस इज़ 6 किलोमीटर. अब बताते हैं कि डिफरेंस आया कैसे. हाउ हैज़ द डिस्टेंस, हाउ इज़ दिस स्केलर एंड हाउ इज़ डिस्प्लेसमेंट अ वेक्टर क्वांटिटी. सी, एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट मी ड्रॉ द मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन. अब एक स्ट्रेट लाइन पर एक मोशन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है. सी, यहाँ पर देखो एक स्ट्रेट लाइन. दिस इज़ पोजीशन A, दिस इज़ पोजीशन B एंड दिस इज़ पोजीशन C. पोजीशन A, पोजीशन B, पोजीशन C. अब यहाँ पर सपोज करो दिस इज़ 3 किलोमीटर, दिस इज़ 2 किलोमीटर. This is 3 kilometer and this is 2 kilometer. All right, and consider this also. This is 3 kilometer and यहाँ से ये आया इस पोजीशन पर. This is 2 kilometer. ये 3 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है. अच्छा, now in this case, अब इस केस में क्या है? Distance is equal to 5 किलोमीटर. यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर. सो सी, डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कोई इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा. इट इज़ कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, इट इज़ कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड. सो दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. तो डिस्टेंस क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी. इसके ऊपर डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा. नाउ इन दिस केस इफ़ आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ पर बात करूँ मैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ यही है, स्ट्रेट पाथ. तो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज़ 5 किलोमीटर. लेकिन यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट सपोज करो ये यहाँ से आया इसको लगे 4 किलोमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट है, इट बिकम्स 4 किलोमीटर. तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सेम क्वांटिटी में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आ गया. सो डिस्प्लेसमेंट इट डिपेंड्स अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. हेंस दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सी, आई टेल यू वन मोर एग्जांपल. एक ऑब्जेक्ट ने A से स्टार्ट करा, वो घूम फिर के गया और उसने सारा पाथ कवर करा और वापस A पर आ गया. उसने कहा कि मैं 15 किलोमीटर चल के आया हूँ. कितना? 15 किलोमीटर. इन दिस केस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 15 किलोमीटर.
बट इफ आई आस्क यू अबाउट डिस्प्लेसमेंट, उसने कितना करा? डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहीं से शुरू करा, यहीं ख़त्म कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। सो डिस्टेंस दिस इज़ 15। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं एस से। डिस्प्लेसमेंट दिस इज़ आइडेंटिफाइड, दिस इज़ इसका सिंबल होता है एस। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करा जाता है उसके ऊपर एक एरो लगा के। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी ज़ीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। तो यू गॉट सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। 2-3 डिफरेंस के बारे में भी आपको पता ही लग ही गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्यों इनको हम स्केलर, क्यों इनको वेक्टर बोलते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट speed as well as velocity. Next we will discuss about speed as well as velocity. speed और velocity के बारे में जानेंगे। See, speed is equal to s is equal to distance upon time, distance upon time. So distance भी यहाँ पर क्या है? it is a scalar quantity. time भी क्या है? scalar quantity. तो speed भी क्या हो गई? speed is also a scalar quantity. speed is also scalar quantity. But in case of velocity, we represent velocity with v और उसके ऊपर arrow, because velocity this is a vector quantity. How it is a vector quantity? Because v is equal to displacement s bar, displacement upon time. So this displacement क्या है? displacement this is a vector quantity. displacement एक vector quantity है, तो velocity भी क्या हो गई? This is a vector quantity. velocity it has become a vector quantity. See, all right. तो can velocity become zero now? velocity zero हो सकती है? Yes, the answer is yes. If displacement will be equal to zero, अगर displacement zero होगा, then velocity becomes ज़ीरो। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। लेकिन कैन स्पीड बिकम ज़ीरो? नो, स्पीड कैन नेवर बिकम ज़ीरो। स्पीड कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। सो दिस इज़ वन अनदर डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सी, ऑलराइट, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। थोड़ा बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कि एवरेज कैसे निकालें। ऑलराइट, तो इसके लिए मैं एक रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर करता हूँ। ये पाथ है स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट है ए, दिस पॉइंट इज़ बी, दिस पॉइंट इज़ सी, दिस पॉइंट इज़ डी। सी, तो ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज करो डिस्टेंस इज़ S1, S2, S3, S4। ए से बी तक जाने में टाइम लगा T1, बी से सी तक जाने में टाइम लगा T2, सी से डी तक जाने में लगा T3। अच्छा, दिस इज S4 की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलराइट, सो S1 ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस S2, सी से डी का डिस्टेंस S3। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड, अच्छा, इसकी वेलोसिटी ए से बी तक थी v1, बी से सी तक v2 और सी से डी तक इसकी वेलोसिटी थी v3। ये हमने वेलोसिटी भी लिख ली इसकी यहाँ पर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर करा? S1 प्लस S2 प्लस S3। टोटल टाइम कितना लिया? T1 प्लस T2 प्लस T3। तो बहुत सारे लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को एक ही चीज़ मानते हैं, तो बेटा एक चीज़ नहीं होती। अब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज़ सम ऑफ वेलोसिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। अब इस केस में सम ऑफ वेलोसिटी का मतलब
v1 प्लस v2 प्लस v3। कितनी वेलोसिटी है यहाँ पर? 3 ही वेलोसिटी हैं, तो डिवाइडेड बाय 3। अगर 2 वेलोसिटी हो तो डिवाइडेड बाय 2, अगर 4 हो तो डिवाइडेड बाय 4। दिस फार्मूला गिव्स द वैल्यू फॉर एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग अलग हो सकती हैं। इस केस में सपोज करो अगर मैं आपको बोलूँ कि डिस्टेंस यहाँ पर था 4 किलोमीटर, यहाँ पर भी था 4 किलोमीटर और यहाँ पर भी था सपोज करो 4 किलोमीटर। यहाँ पर टाइम लिया उसने 2 सेकंड या 2 घंटे लगा लो, यहाँ पर भी लिया 2 घंटे, यहाँ पर भी लिया 2 घंटे। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा? 4, 8 और 4 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 2 6, तो दिस बिकम्स 2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ हिज एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि वो वेलोसिटी से चल रहा था कितनी, सपोज करो वो चल रहा था 2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, तो सम ऑफ वेलोसिटीज़ 2 प्लस 2 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 3, दिस बिकम्स 2 किलोमीटर पर आवर। बट इफ़ आई से कि वो यहाँ पर चल रहा था 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कम हो गई, 1 किलोमीटर पर आवर चला, और यहाँ पर चला वो सपोज करो 2 किलोमीटर पर आवर से। वेलोसिटी की मैंने वैल्यू चेंज कर दी। नाउ सी व्हाट हैपेंस। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? 3 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। सो मेक इट 3 ऑल्सो। 6, दिस बिकम्स 7 बाय 3, दिस बिकम्स 2.33 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। सो तो एवरेज वेलोसिटी अलग तरीके से निकालते हैं, एवरेज स्पीड अलग तरीके से निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वी टेक इट आउट बाय सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज। So this is a formula for average speed and average velocity. So we'll continue this chapter in our next video. So stay tuned for that. Thank you very much.